Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It's your last class and English class. I am Sareh Madali, and today we will talk about phrases. But in phrases, we will talk about adverbial phrase. Clear? Adverbial phrase. So, what is adverbial phrase? First of all, you need to know that, and I explained this thing thoroughly. That what is adverb? In simple definition, in simple words, we can say that adverb is a word which modify a noun, which modify a verb, adjective, or another adverb. Adverb is a word which modify a verb, adjective, or another adverb. Means simple, in simple words, they are the words which say something extra, which exaggerate, which beautify a verb, adjective, or another adverb. But here we have adverbial phrase. So first of all, we need to know what is a phrase. Phrase, a group of words without subject verb agreement, having incomplete structure and incomplete thought, is called phrase. अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ना हो, मीन जिसमें सब्जेक्ट भी ना हो और वर्ब भी ना हो, जिसका स्ट्रक्चर साख्त भी इनकम्प्लीट हो और उसकी मीनिंग भी इनकम्प्लीट हो, उसको हम कहते हैं फ्रेज. Then we have types of phrases, kinds of phrases, adverbial phrase, prepositional phrase, noun phrase, adjectival phrase. But here in this lesson we will talk about adverbial phrase. यहाँ पर हम बात करेंगे adverbial phrase की regarding. फंक्शन वही होता है एडवर्बियल फ्रेज का जो एक सिंपल एडवर्ब का होता है. सिर्फ एक लफ्ज की जगह, एक वर्ड की जगह दो तीन वर्ड्स बन जाते हैं. But the function of the phrase will be the same as just like a single word, a single adverb. An adverbial phrase is a group of words, definition, that act together as an adverb, giving more information about a verb, adjective, or another adverb in a sentence. The adverbial phrase answers the same questions as a regular adverb: how much, when, or where. Clear? So here underline the adverbial phrase on the line, write the question at answer. और ये चीज जहन में रखिए कि जिस तरह मैंने बता दिया, एक्सप्लेन किया कि एडवर्बियल फ्रेज जो होते हैं उसका स्ट्रक्चर, उसकी मीनिंग हमेशा क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं. They always give us incomplete structure and incomplete meaning. So just look at the first sentence. We expect our grandparents to arrive in about an hour. So here in this sentence, the phrase is in about an hour. How much time? Time के बारे में हमें बता रहा है. Clear? So in about an hour is the phrase. Which kind of phrase? Adverbial phrase. My cousin watches, second sentence, my cousin watches television almost as much as you do. Almost as much as you do, how much? So again, it's an adverbial phrase. Almost as much as you do, how much again? The weatherman says it will rain all day. So all day is the adverbial phrase. For how long? कितने देर तक? Clear? Your brother plays soccer better than my brother does. Better than my brother does. How? एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में हमें बता रहा है और यहाँ पर कंपैरिजन भी है. क्लियर? कंपैरेटिव एडवर्ब है. हाउ? आवर फ्रेंड ड्राइव्स ऑन मंडे.
तो यहाँ पर हमारे साथ है when, एडवर्ब ऑफ टाइम है, on Mondays, so it is adverb of time. Clear? The next topic is adverbial clause in a sentence, sentences. So what is a clause? In simple words, a clause is equal to a simple sentence. क्लास तकरीबन एक सिंपल सेंटेंस का इक्वल होता है. A clause is almost equal to simple sentence. Then we have two types. Mainly we have two types of clauses. One is called independent clause, another is called dependent clause. Independent clause का मतलब है प्रिंसिपल क्लॉज, ऐसा क्लॉज जिसको दूसरे क्लॉज की जरूरत ना हो अपनी स्ट्रक्चर या मीनिंग कंप्लीट करने के लिए. तो जितने भी हमारे साथ ये एडवर्बियल क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिवल क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है, ये सारे हमारे साथ होते हैं डिपेंडेंट क्लॉज. So here adverbial clause is also a dependent clause. Clear? और फंक्शन वही होता है जिस तरह हमने कहा कि एक सिंगल एडवर्ब का होता है या एक एडवर्बियल फ्रेज का होता है. फंक्शन वही, सिर्फ स्ट्रक्चर अलग होता है, क्योंकि क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है. An adverb clause, like all clauses, has a verb and usually a subject. So remember, subject verb agreement will must be there. Subject verb agreement will always be a part of clause. Remember, it is connected to the rest of the sentence with a subordinating conjunction. बाकी मानदा सेंटेंस के साथ ये कौन इसको कनेक्ट करता है? कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, such as because, when, if, are, although. And we have a long list of subordinating conjunctions. Because is also a subordinating conjunction. It contains a subordinating conjunction. The adverb phrase is a dependent clause. It can't stand alone as a complete sentence. Although subject verb agreement will be there, but the meaning seems to be incomplete. जो इसका मीनिंग होता है वो इनकम्प्लीट सा लगता है. It functions such as a single word adverb does, modifying a verb, adjective, or another adverb. However, an adverb clause may also modify an entire clause or a phrase. It describes where, when, why, how, or how much something is happening. Clear? Examples. Although it was late, Jamila continued to read her book. अब इस सेंटेंस को आप लोग रीड कर लो. Although it was late, although हमारे साथ क्या है? ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. अगर इस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम स्किप कर ले, ड्रॉप कर ले और सिर्फ इट वाज लेट से स्टार्ट कर ले ये सेंटेंस, तो फिर ये क्लॉज हमारे साथ क्या होगा? प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा. So keep this thing in your mind. Because of subordinating conjunction, the clause converts into a subordinate mean dependent clause. A subordinate conjunction की वजह से ये clause क्या होता है? Dependent clause बन जाता है. जमीला continued to read her book. जमीला इसमें क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है. देखो इसका स्ट्रक्चर देख ले, इसकी मीनिंग देख ले. जमीला continued to read her book. जमीला जारी रही अपनी किताब की पढ़ाई में. बिल्कुल कंप्लीट मीनिंग है, कोई एम्बिगिविटी नहीं है. अब although it was late, अगरची देर हुई थी, अगरची mean if you say these words to somebody else, so the person will continually listen to your words that you are going to say something else. Example,
I reached home. For example, I reached home. मैं घर पहुंचा. Okay, complete structure, complete meaning. Because the house was robbed. घर को चोर ने लूट लिया था, लुटेरे ने लूट लिया था. So because the house was robbed. अब अगर ई वर्ड्स हम पहले किसी से कहे because the house was robbed, घर को किसी ने लूट लिया था, क्योंकि घर को किसी ने लूट लिया था, तो मीनिंग तो आ रही है लेकिन इनकम्प्लीट सी लग रही है. क्योंकि समझ गए. तो यहां पर भी although it was late हमारे साथ क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, मीन डिपेंडेंट क्लॉज है. और जमीला कंटिन्यू टू रीड हर बुक हमारे साथ क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है. और ये जो पूरा सेंटेंस है ये हमारे साथ क्या है, इसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस. और कम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है एक इंडिपेंडेंट क्लास से और एक सब ऑर्डिनेट क्लास से. उसमें एक सबऑर्डिनेट होता है और एक इंडिपेंडेंट का क्लास या प्रिंसिपल क्लास होता है. क्लियर. द एडवर्ब क्लास इज although it was late. The subordinating conjunction is although. The adverb clause tells us when Jamila was reading. Clear? So now एक और चीज जो आप लोगों ने याद रखनी है, अगर इस क्लासेस को, इन क्लासेस की जगह को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. इस तरह हम भी पढ़ सकते हैं जमीला कंटिन्यू टू रीड हर बुक although it was late. तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि अगर सबऑर्डिनेट क्लास को आप लोगों ने फर्स्ट यूज करना है, क्लियर, तो फिर आप लोगों ने सबऑर्डिनेट क्लास के बाद कॉमा यूज करना है. क्लियर. कॉमा जिस तरह यहां पर यूज हुआ है. लेकिन अगर इसको हम रिप्लेस कर ले, इसकी जगह को हम चेंज कर ले, अब इस तरह लिख के जमीला कंटिन्यू टू रीड हर बुक, फिर कॉमा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि although हमारे साथ कंजंक्शन है, तो वो कंजंक्शन उस कॉमा का जो काम है, वो जो स्ट्रक्चर है उसको पूरा करता है. तब आप लोगों ने क्या करना है, कॉमा को आप लोगों ने ऐड नहीं करना. क्लियर. इस चीज को आप लोग जहन में रखिए. ओके. अब आते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ. आप लोगों ने इसमें से सर्च करना है, तलाश करना है. Underline the adverb clause in each sentence below. Because no one was home. क्योंकि कोई भी घर में न था. The thieves robbed the house. So because is a subordinating conjunction. So in simple words, it is a adverbial clause, a dependent clause. And the thieves robbed the house is a principal clause or independent clause. Clear? If Bashir calls, please tell him I am on my way. So if Bashir calls, अगर बशीर कॉल करता है तो ये क्या है, हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है, एडवर्बियल क्लॉज है. प्लीज से लेकर वे तक हमारे साथ क्या है, प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लॉज है. थर्ड सेंटेंस, Palvasha climbed the stairs after she finished her dinner. अब इसको जरा आप लोग देखें, इसमें कॉमा इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, वो पहले इस्तेमाल हुआ है और लास्ट में क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है. So Palvasha climbed the stair. It is an independent clause, principal clause, and after she finished her dinner is a dependent clause as adverbial clause. Clear? He takes exercise before he goes to school. He takes exercise is principal clause, before he goes to school is a dependent clause, adverbial clause. Clear? And before is a conjunction. Which conjunction? Subordinating conjunction. कल मैंने बताया था कि हमारे साथ कंजंक्शन के मेनली टू टाइप्स है. एक को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा हमारे साथ है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड सेंटेंस में
और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम यूज करते हैं complex sentence में. And as I told you that complex sentence is a combination of one dependent and one independent clause. Clear? Next sentence. You should visit the monument before you leave town. So before you leave town is the dependent clause, adverbial clause, and before is the subordinating conjunction. He takes exercise before he goes to school. Repeat why again. So before he goes to school हमारे साथ क्या है? Dependent clause है, subordinate clause है. He takes exercise हमारे साथ क्या है? Principal clause है या independent clause है. Clear? So it was all about clauses and mainly adverbial clause. Clear? अब चलते हैं दोबारा. यहाँ पर एक एक्सरसाइज हमारे साथ है. इट इज ऑन पेज निकाले आप लोग. इज ऑन पेज 70. कम टू पेज 70. पेज 70 and question first. It is on in vocabulary. Look up the meaning of the following words in the dictionary and make sentences to clearly bring out the meaning. तो ये सॉल्व की हुई आप लोगों को इंशाल्लाह नोट्स मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन फिच एंड ब्रिंग. फिच और ब्रिंग में फर्क क्या है? तो फिच का मतलब है जब हम किसी चीज की पीछे चलते हैं और लेकर आते हैं तो हमारे साथ होता है फिच. व्हेन वी गो बिहाइंड समथिंग, when we go behind something and bring it back, it is called fetch. और bring का मतलब है सिर्फ लाना, mean to carry something, to bring something. The second is famous and notorious. उर्दू में दोनों का मतलब है मशहूर. But if someone gets popularity for his good character, good deeds, good behavior is called famous. कोई इंसान अपने अच्छे कामों, किरदार, अखलाक की वजह से मशहूर हो जाए तो वो क्या होता है? फेमस होता है. Notorious is actually the opposite of this word. If somebody get popularity for his wrong deeds, bad character is called notorious. इसको हम कहते हैं बदनाम ज़माना. जो बुरे किरदार, बुरे काम, बुरे अखलाक की वजह से मशहूर हो जाए, पॉपुलैरिटी गेन कर ले, तो वो क्या होता है? नोटोरियस. क्लियर? The third one is crime. If somebody goes against laws, कानून के खिलाफ वर्जी करना, कानून के खिलाफ जाना, उसको हम कहते हैं जुर्म. कोई मुल्क के लॉज होते हैं, उसके कोई पामाली करता है, उसको तोड़ता है कोई आदमी, तो वो क्या होता है? क्राइम होता है. And the opposite is sin. If somebody goes against religious customs, traditions, teachings, तो वो क्या होता है? sin. ठीक है. मजहबी अहकामात की खिलाफ वर्जी करना क्या होता है? sin, गुनाह होता है. फिर हमारे साथ है डेजर्ट, सहरा. ठीक है. डेजर्ट, सहरा, अ कंप्लीट लैंड ऑफ सैंड. एंड बैरन, एन अनकल्टिवेटेड प्लेस, जो बंजर होता है, जो काश के काबिल नहीं होता. ठीक है. होता है लेकिन किसी ने सपोज इग्नोर किया है, तो वो क्या होता है? बैरन होता है, बंजर होता है. क्लियर? ओके. चलते हैं इस यूनिट की. कम टू पेज. इसको जरा दोबारा पढ़ते हैं. कम टू पेज 65. What? 65. Okay, those students who were absent, so उनके लिए थोड़ा इसको रिपीट करते हैं. अरेबिया इज अ डेजर्ट लैंड वेयर वाटर इज स्केर्स. अरब एक सहराई मुल्क है जहाँ पर पानी की कमी होती है.
Even if water is found, अगर पानी मिल भी जाए, it is not always suitable for drinking, तो वो पीने का काबिल नहीं रहता. In olden days, people had to travel long distances. पुराने ज़माने में लोगों को तवील सफ़र तय करने पड़ते थे to fetch water, पानी लाने के लिए. And sometimes और बाज़ औक़ात they had to remain without it, वो पानी के बगैर उनको रहना पड़ता था for a day or even more, एक दिन या इससे ज़्यादा. When the Holy Prophet Muhammad migrated to Medina, जब आप सल्लल्लाहु ने मदीना हिजरत की, there was only one well of sweet water in town, तो उस कस्बे में एक ही मीठे पानी का कुआं था. It was called Bereroma, जो बेरोमा के नाम से जाना जाता था. The well was owned by a Jew, ये कुआं एक यहूदी की मलकियत में था. Who sold its water at a high price, जो इसकी पानी को महंगे दामों फरोख्त करता था. The companions of the Holy Prophet ﷺ were generally poor. आप ﷺ के जो साथी थे, सहाबा कराम थे, वो आम तौर पर गरीब थे. And found it hard to get water, उनको पानी लाने में, हासिल करने में दिक्कत होती थी, तकलीफ होती थी, मुश्किल पेश आती थी. One day they came to the Holy Prophet ﷺ and apprised him about their condition. एक दिन वो आप ﷺ के पास आए और उनको अपने हालात से आगाह किया. The Prophet ﷺ was sitting in masjid, आप ﷺ अपनी मस्जिद में तशरीफ फरमा थे. At that time, उस वक्त, and many of his companions were there too, आप ﷺ के बहुत से साथी भी वहाँ पर मौजूद थे. He looked around, उन्होंने इर्द गिर्द देखा and said, और फरमाया, Is there anyone here who would like to purchase paradise for himself? क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जो अपने लिए जन्नत खरीदे? In return for Bereroma, बेरोमा की बदले. हाथ उस्मान stood up, उस्मान खड़े हुए, and went out quietly, और खामोशी के साथ चले गए. He went to the Jew, वो यहूदी के पास गए, and offered to buy the well from him, ताकि उससे वो कुआं खरीदे. The Jew did not agree to sell it at first. पहले तो यहूदी इसकी बेचने पर राजी न था. But then he thought, फिर उसने सोचा, it might be more profitable, कि उनके लिए ज़्यादा मुनाफा बख्श होगा, फ़ायदेमंद होगा, to make हाथ उस्मान अब पार्टनर के, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना शरीके कार बनाए, साथी बनाए. As he was a rich businessman, क्योंकि वो एक मालदार ताजर थे. He therefore agreed to sell half of his share in the well. इसलिए वो राजी हुए कि कुएं में अपना आधा हिस्सा फरोख्त करें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर for 12,000 dirhams, 12,000 दरहम में. It was agreed, इस बात पर फैसला हुआ, ये तय पाया, that हज़रत उस्मान would receive all the income for the well from the well for one day. उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुएं का एक दिन का पानी हासिल करे, आमदनी हासिल करेगा, and the Jew for the next, और यहूदी अगले दिन का. हज़रत उस्मान returned to the masjid, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद वापस तशरीफ लेकर आए, and offered his share in the well, और अपनी हिस्से की पेशकश कर दी कुएं में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. It was proclaimed in Medina, मदीना में ये आम ऐलान हुआ, that everyone could carry as much water free of cost, कि हर कोई बगैर किसी कीमत के पानी ला सकता है, as he or she liked, जितना वो चाहे, on the day appointed for हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुकर्ररा दिन पर. The Muslim as well as the Jews made full use of हज़रत उस्मान's generosity. मुसलमानों के साथ साथ यहूदियों ने भी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहावत से पूरा फ़ायदा उठाया, and carried enough water to last for the next day as well. अब इतना पानी लाती कि वो अगले दिन के लिए भी बाकी रहता. The Jew learned a better lesson. यहूदी ने एक तल्ख सबक सीखी, whereas he had hoped, जहाँ तक उसने उम्मीद कर रखी थी, to make more money, ज़्यादा पैसे कमाने की, he made none at all, वो कुछ भी न कमा सका. He went to हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास चले गए, and offered to sell other half of the well also, और दूसरे हिस्से की भी बेचने की पेशकश कर दी. हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु could have refused to buy it, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु इसके खरीदने से इनकार कर सकते थे. For the Muslim had no longer any difficulty, क्योंकि अब मुसलमानों को कोई तकलीफ ना थी, मुश्किल ना थी. But such was his generosity, लेकिन उसकी सहावत इतनी ज़्यादा थी, that he paid the Jew whatever he asked for his share. तो उसने यहूदी को उतनी ही दी
जिसने उसने अपने हिस्से के लिए तलब की मांगे। द विल वाज डेडिकेटेड, उस कुएं को मुख्तस कर दिया गया, वक़फ़ कर दिया गया एज एन एंडोनमेंट, एक तोहफे के तौर पर, टू द पीपल ऑफ मदीना, मदीना के लोगों के लिए। द विल एग्जिस्ट इन मदीना, ये कुआं आज भी मदीना में मौजूद है। एंड इज नोन एज बेर उस्मान और उस्मान विल, और बेर उस्मान या उस्मान की कुएं के नाम से याद किया जाता है। सेकंड, ड्यूरिंग द डेज ऑफ कैलिफ उमर, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर खिलाफत में, फेमन ब्रोक आउट इन अरेबिया, अरब में कहत फूट पड़ा। हज़रत उमर वाज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड, हज़रत उमर बहुत ज़्यादा परेशान पड़ गए। ही डिड ऑल ही कुड, उन्होंने वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। टू लिसन द हार्डशिप्स ऑफ द पीपल, लोगों की तकालीफ कम करने के लिए। ऑल द फूड दैट वाज ब्रॉट इनटू मदीना, वो तमाम गल्ला जो मदीना लाया गया था, was purchased by the caliph, खलीफा ने बैतुल के लिए खरीदा, and distributed among the people, और लोगों के दरमियान तकसीम किया। One day he learned, एक दिन उनको पता चला, that 1,000 camel load of flour belonged to Hazrat Usman रज़ियल्लाहु तआला अन्हु had reached मदीना, कि 1000 आटे की लदी ऊन जो है हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मदीना पहुंच चुके थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु went to him straight away, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके पास सीधे चले गए, and offered to buy the entire stock from him at 25% profit, उनको पेशकश की उन तमाम ज़हीरी की खरीदने की 25% मुनाफे से। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु however turned down the offer, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने ताहम उसकी पेशकश को टुकरा दिया, मुस्तरद किया। and said, और फरमाया, I have another buyer, मेरे पास एक दूसरा खरीदार है। बायर, बाय, अगर बाय कर ले तो ये वर्ब है, er ऐड कर ले तो मीन वर्ब से नाउन बन जाता है बायर। who is offering me much more, जो मुझे इससे कहीं ज्यादा दे रहा है, पेशकश कर रहा है। The caliph said, खलीफा ने कहा, I can offer you 50% profit, मैं आपको 50% मुनाफा दे सकता हूँ। कैन यहाँ पर यूज हुआ है, इज अ मॉडल एक्सिलरी है, ठीक है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। हज़रत उस्मान स्टिल डिक्लाइन, हज़रत उस्मान ने अब भी मुस्तरद किया, इनकार किया। हज़रत उमर रेज हिज ऑफर टू 100%, उमर ने अपनी पेशकश 100 गुना तक बढ़ा दी। और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु डिड नॉट एग्री एंड सेड, लेकिन वो फिर भी राजी ना हुई और फरमाया, कहा, आई हैव अ बायर, मेरे पास एक खरीदार है, who is offering me even more, जो मुझे इससे भी ज्यादा दे रहा है। The caliph offered to pay 3 times, खलीफा ने अपनी पेशकश को 3 दफा दोहराया, 3 दफा बढ़ाया। The price of the flour, उस गले की कीमत को। Then 4 times, फिर 4 मरतबा, and even 5 times, यहाँ तक कि 5 मरतबा। हज़रत उस्मान rejected all these offers, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन तमाम पेशकशों को मुस्तरद किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गॉट अप एंग्रीली, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्से से खड़े होके फरमाया, उस्मान, why have you become so hard hearted now, उस्मान आप इतने सख्त-दिल अब क्यों बन गए हो। whereas you used to be so generous in the days of the holy prophet sallallahu alaihi wasallam, जबकि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत ज़्यादा सही हुआ करते थे। He answered, उसने जवाब दिया, I am only doing business, मैं तो सिर्फ कारोबार कर रहा हूँ। And I would sell my goods to the one, और मैं अपना जो सामान है सिर्फ उसको बेचूंगा, who would give me the greatest profit, जो मुझे सबसे ज़्यादा मुनाफा दे। greatest superlative डिग्री यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। The caliph raised his offer higher and higher, खलीफा ने अपनी पेशकश को बढ़ाता गया until he was willing, यहाँ तक कि वो ख्वाहिशमंद था, to pay 9 times the price of the flour as profit की, 9 गुना तक उसने उस आटे की कीमत को मुनाफे के तौर पर बढ़ा दिया। हज़रत उस्मान then stood up calmly, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु खामोशी के साथ खड़ी हुई, and said, और कहा, उमर, I have already sold my stock, उमर मैं पहले से अपना गल्ला जो है, ज़हीरा जो है वो बेच चुका हूँ। The buyer is Allah, खरीदार जो है वो अल्लाह है। Who has promised, जिसने मुझसे वादा किया है, to pay me at least 10 times, जो मुझे मुनाफा देगा, फायदा देगा 10 गुना। The price
एज प्रॉफिट मुनाफी के तौर पर, एंड मे रेज इट टू 70 और 700 टाइम्स, और हो सकता है कि इसको 700 या 70 गुना तक बढ़ा दे। मे रेज, ठीक है, ये में भी हमारे साथ क्या है, मॉडल एक्सिलरी है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। एंड बाय द वे, व्हाई डू वी यूज दिस मे मॉडल एक्सिलरी? सो द पर्पस बाय यूजिंग मॉडल एक्सिलरी मे इज, एक तो हम में यूज करते हैं परमिशन, टू सीक परमिशन, may I come in the class, so may for asking permission. सेकंड, हम इसको यूज करते हैं प्रे के लिए, दुआ के लिए, may Allah give you long life. Whenever we have some good wishes for somebody else, we use may. Clear? The third use of may is prediction. It may rain today. हो सकता है कि आज बारिश हो. In the same case and scenario, may is used here. Clear? Okay. Go and distribute, जाओ और तकसीम करो the floor among the people in the name of Allah, इस आटे को लोगों के दरमियान अल्लाह के नाम पर. The caliph was so touched by the generosity of Usman that he wept. खलीफा उस्मान की सहावत से इतना मुतासिर हुई कि वो रो पड़े, wept. He then embraced him, पर उसने उसको गले लगाए, and begged और इल्तिजा की, forgiveness माफ़ी की, for the harsh words उन सख्त अल्फाज के लिए, he had used earlier जो उसने पहले इस्तेमाल किए थे. Then it was distributed among the people in the happily and generously. फिर इसको, इस गले को लोगों के दरमियान सहावत के साथ और खुशी के साथ तकसीम कर दिया गया. ओके स्टूडेंट्स, होमवर्क में आप लोग नोट कर लें. ओके, ये जो एडवर्ब फ्रेज है एंड एडवर्ब क्लास है, ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरह देख लें. और जो जिस पेज पे ये एडवर्ब यूज हुई है, इट इज ऑन पेज है हमारे साथ 72. Occasionally, sometimes, usually, rarely, once, very, never, mostly, often, always. इसको आप लोग अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर ले, लेकिन ये जो बुक में है इससे हट कर ये वाले सेंटेंसेस नहीं होंगे, ठीक है. अपनी सेंटेंसेस में यूज करिए एंड मीनिंगफुल सेंटेंसेस. ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो यू कैन आस्क. मामून, मामून बेटा, unmute your mic. Hurry up, ask the question. Zubair, Sara, 9th A. Excuse me, sir. ये जो आपने जो होमवर्क दिया है ना, ये जो वर्ड्स, ये जो एडवर्ब्स है, किस पर सेंटेंसेस बनाए? बिल्कुल, ओकेजनली, समटाइम्स, यूजुअली, रेयरली, इस पर सेंटेंसेस बना ले. सही है, इन एडवर्ब्स को सेंटेंसेस में यूज कर, लेकिन ये वाले सेंटेंसेस नहीं हो, हट कर सेंटेंसेस हो गए. सही है. जवेरिया, Okay. ask the question. If you have any question, hurry up, hurry up. सर ये एडवर्बियल क्लॉज समझाए. एडवर्ब क्लॉज, हाँ, एक तो एडवर्ब क्लॉज हमारे साथ होता है डिपेंडेंट क्लॉज ना. क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो जिसको जरूरत हो अपनी मीनिंग को क्लियर करने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की, ठीक है. दूसरी बात यह है कि फंक्शन वही होता है एडवर्बियल क्लॉज का जो एक सिंगल एडवर्ब का होता है. फंक्शन वही है, फंक्शन चेंज नहीं होता. द फंक्शन विल रिमेन द सेम इन एनी केस. Again, if we have a single adverb, if we have a phrase, if we have a clause, it will modify a verb, adjective or another adverb. लेकिन एक एडवर्ब में हमारे साथ सिंगल वर्ड होता है, फ्रेज में 2-3 वर्ड्स होते हैं और क्लास में एक सेंटेंस होता है. लेकिन वो सेंटेंस इस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की वजह से क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज बन जाता है. ठीक है, एग्जाम्पल और इंशाल्लाह मैं कल दे दूंगा, इस तरह समझा दूँ एग्जाम्पल्स में इंशाल्लाह. उसके आप लोगों के लिए मैं एक वर्कशीट रेडी कर लूंगा, उसमें आप लोगों को फिर एक्सप्लेन हो जाएगा. सही है, क्लियर? Hello Zubair, if you have anything kindly ask.
Okay, I think it's enough for today. Inshallah, we will meet tomorrow for next unit. Okay, thank you. Excuse sir, crime or sin? हाँ, क्राइम जो होता है तो मैंने कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी करना। जब हम कानून को पामाल करते Yes. हैं, सपोज अब ट्रैफिक रूल्स है हमारे साथ ना, तो कोई ट्रैफिक रूल्स को वायलेट sir. करता है तो ये क्या होता है, क्राइम होता है। ठीक है, समझ Yes. गए। सपोज रिश्वत है, उस आपकी आइन में है कि मीन रिश्वत जो है वो नहीं लेना या न देना है या न लेना है, समझ गए। कोई करता है तो ये लॉज जो बने हैं उसके Yes. खिलाफ वर्जी के खिलाफ कोई जाता है तो वो तो क्राइम हुआ। अब जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे Yes, sir. साथ है, जो मजहब में है, सपोज एडल्ट्रेशन इज अ सिन, मिलावट एक गुनाह है। अब्यूजिंग इज अ सिन, गाली देना क्या है, गुनाह है। तो जो मजहब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई चीज हो तो वो हमारे साथ सिन होता है। जो कानून के लिहाज से हो, जो आपके आईन वगैरह में लिखा है, तो वो क्या होता है, हमारे साथ क्राइम होता है। ठीक है, ओके। Yes, sir. ओके, गुड, ओके, थैंक यू।